دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لٹل اینجل چلو جلدی کرو، کھانا کھاؤ، پھر سونا بھی ہے تم نے۔ زاویار اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ نہیں نا زاویار، ہمارا دل نہیں کر رہا۔ لٹل اینجل ضد مت کرو، چلو کھاؤ۔ زاویار، نور جان بات مان لو میری، جلدی کرو۔ زاویار نے نوالا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ آپ زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دل جو بھی نہیں ہے، تم بات جو نہیں مانتی ہو۔ ہم نہیں بول رہے اب، تم کچھ زیادہ ہی ضدی نہیں ہوتی جا رہی لٹل اینجل؟ ہاں تو ہماری مرضی، نور نے نخرے سے کہا تھا۔ زاویار نے اس کے گال کو پیار سے چھوا تھا۔ زاویار نہیں کرے نا، نور تمہاری یہ ضد نہیں چلے گی، سمجھی؟ زاویار نے اسے زبردستی کھانا کھلایا تھا۔ زاویار، پتہ ہے لٹل اینجل میں زاویار ہوں، اب سو جاؤ، چلو شاباش۔ آپ بہت گندے ہیں۔ اچھا جی، اور تم بہت اچھی۔ ہم بات نہیں کریں گے آپ سے، ابھی سو جاؤ لٹل اینجل، صبح بات کریں گے۔ نور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ زاویار نے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلائی تھیں اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ زاویار نے شدت سے اس کے سر پر پیار کیا تھا اور کپڑے چینج کرتے وہ باہر گیا تھا۔ زوہان روم میں تیار ہو رہا تھا۔ دنین کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں، وہ مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کب تک گھورو گی مجھے ایسے اپنی بلی آنکھوں سے؟ زوہان نے آئینے میں اپنے بال سیٹ کرتے پوچھا تھا، جس پر دنین نے اپنی نظریں چرائی تھی۔ وہ بھی روم سے باہر نکلتا کہ دنین نے آہستہ سے پوچھا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کسی لڑکی؟ وہ آگے نہیں بول پائی تھی۔ فکر مت کرو، کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جا رہا، بلکہ اپنے دشمنوں کو ایک اور شکست دینے جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا دروازہ بند کرتے باہر کو پڑا تھا۔ دنین نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا، کہیں وہ بابا نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ بھابھی کو تو بتا دیا نا بھائی؟ عرش نے زاویار کو آنکھ ونک کرتے پوچھا تھا۔ ہاں سلا دیا، زاویار نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بھائی آپ کی بارات لینے تھوڑی جا رہے ہیں جو ریڈ ڈریس پہنا ہے آپ نے؟ عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تیری لینے جانی ہے نا، تو پری بارات کے لیے پہنا ہے، زاویار نے کہا تھا۔ زاویار نے بلیک شرٹ کے ساتھ وائن ریڈ کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عرش نے ڈسٹی روز کلر پہنا تھا، بھورے بال سیٹ کیے ہوئے تھے۔ زوہان نے سکائی بلیو پینٹ کوٹ پہنا تھا اور ارمغان نے کافی براؤن سوٹ پہنا تھا۔ زائرہ نے وائن ریڈ گولڈ ڈریس پہنا تھا، ڈارک ریڈ لپسٹک لبوں پر سجائے، ہائی ہیلز پہنے، بال کرل کیے، وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مائی لیڈی کہا تھا نا کہ مت پہننا یہ، کیوں تم چاہتی ہو کہ میری نظریں تم پر ہی رہیں؟ ارمغان نے اس سے سرگوشی میں کہا تھا اور زائرہ نے اپنی ہیل زور سے اس کے پاؤں پر ماری تھی۔ آؤچ! نظریں ہٹا لو مسٹر شیڈو ورنہ نوچ لوں گی، زائرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اف! تمہارا یہ روپ جان لوگی کیا میری؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھے تم؟ اوکے مائی لیڈی، ریلیکس۔ بدتمیز! ویسے تم اس ڈریس میں بھاگو گی کیسے؟ اور اوپر سے ہیلز، مدد کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا، ارمغان نے آنکھ ونک کرتے کہا تھا۔ گن کس لیے رکھی ہے؟ زائرہ نے سکورتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے مائی لیڈی، چلو جلدی، زاویار نے کہا تھا۔ اوکے بھائی چلیں۔ دانیال سنبھال کر جانا اور خیال رکھنا اس کا، حشمت جبار نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ جی بابا۔ چلو جلدی کرو۔ جی چلیں۔ دانیال حشمت کے گھر سے گاڑیاں نکلی تھی
اور ادھر پینتھر کے گھر سے ہیوی بائکس، ان کے پیچھے گاڑیاں، وہ سب بائکس پر تھے اور کالی گاڑیاں اندھیرے میں تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ بلوٹوتھ کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے۔ اندھیری رات میں وہ بائکس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ادھر دانیال حشمت کی گاڑیاں تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رات تھی، گہری اور پر اسرار، آسمان پر بادل تھے، چاند کبھی نکلتا کبھی چھپتا۔ ایگزیبیشن ہال کے اندر روشنیوں کی چمک، قیمتی ہیرے، سنہری زیورات اور نایاب چیزیں نمائش میں تھیں۔ شہر کے بڑے لوگ، بزنس مین، سیلیبریٹیز اور اشرافیہ سب وہاں موجود تھے۔ پولیس کی گاڑیاں بھی پولیس اسٹیشن سے نکلی تھیں۔ جلدی گاڑی چلاؤ، SHO ریحان نے کہا تھا۔ جی سر، آج سب کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، انسپکٹر فراز نے کہا تھا۔ بالکل۔ اور اب سب ایک ہی ہال میں جا رہے تھے جہاں ہیرا رکھا ہے، جہاں بہت کچھ ہے، خاموشی، سازش اور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ رات مکمل اندھیری تھی، بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا، سڑکوں پر ہلکی ہلکی دھند تھی، جیسے شہر نے خود کوئی راز چھپا رکھا ہو۔ ایگزیبیشن ہال جگمگا رہا تھا، ہر طرف قیمتی ہیرے، سونے کے زیورات اور نایاب خزانے لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ کارپٹ پر کیمرے فلیش کر رہے تھے، میڈیا موجود، VIPs ہال میں داخل ہو رہے تھے اور ان مافیاز کی بائکس ہال کے پچھلے جانب رکی تھیں۔ دوسری طرف ایک سیاہ SUV آہستہ سے ہال کے گیٹ پر رکی، دروازے کھلے، دانیال حشمت نکلا، دوسری طرف سے کوئی اور بھی نکلا، شیشے کی طرح چمکتے کپڑے مگر چہروں پر نفرت کی پرچھائیاں، وہ بھی اندر کی طرف بڑھے جیسے کچھ طے کر کے آئے ہوں۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، دھیان سے سب کرنا، پینتھر نے سب سے کہا تھا۔ کوئی غلطی نہیں ہوگی، سب نے کہا تھا۔ ادھر پولیس کی گاڑی ہال سے کچھ دوری پر رکی تھی۔ اس وقت وہ یونیفارم میں نہیں تھے۔ ریحان اور فراز کے ساتھ کچھ پولیس والے ہال کے اندر پڑے تھے۔ اگر آج کچھ ہوا تو قانون بھی سر پر کھڑا ہوگا، SHO ریحان نے کہا تھا۔ شیڈو، مافیا لیڈی اور پینتھر ہال کے اندر گئے، جبکہ فالکون اور وولف ہال کے پیچھے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ہر نظر ان پر پڑی، سب کچھ لمحہ بھر کو رک گیا۔ موسیقی کی دھن مدھم پڑ گئی، لوگوں کی باتیں تھم گئیں اور ہر نظر، ہر آنکھ صرف ان پر ٹھہر گئی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ آج نہ وہ اپنے اس کالے لباس میں تھے، نہ چہروں پر ماسک تھے۔ شیڈو کے قدم ٹھہرے نہیں، وہ سیدھا چلتا رہا جیسے اسے نظروں کی عادت ہو۔ پینتھر نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ ٹھیک کیا۔ مافیا لیڈی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ان کی نظریں پہلے سے ہی دشمن کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ چمکتے فرش پر ان کے قدموں کی گونج جیسے ہال کی دیواروں میں خوف سرایت کر رہی ہو۔ دوسری طرف دانیال پہلے ہی وہاں موجود تھا، مگر جیسے ان کی انٹری نے سب بدل دیا ہو۔ دانیال نے گلاس نیچے رکھا اور کہا، یہ رات لمبی ہوگی۔ ہال میں موجود سلطنت ہیرا تھا، سیکیورٹی گارڈز، لیزر لائٹس اور ایک سرخ مخملی کیس کے اندر رکھا ہوا وہ ہیرا جس پر سب کی نظریں ہیں۔ یا شاید ارادے بھی، فراز نے سب سے کہا۔ جو ہونا ہے یہی ہوگا، آنکھیں کھلی رکھو۔ یس سر۔ زاویار نے آہستگی سے ایک قریبی ٹیبل سے گلاس اٹھایا، حرکات میں سکون مگر نیت میں طوفان۔ اس نے آرام سے سامنے رکھی بوتل سے ریڈ وائن گلاس میں انڈیلی لال رنگ روشنی میں خون جیسا چمکتا، جیسے اس رات کی کہانی کے رنگ۔ اس نے ایک نگاہ دانیال اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی،
और गिलास लबों तक ले जाकर सिप लिया। दानियाल ज़ावियार की तरफ देखकर मध्यम सा मुस्कुराया। आंखों में जैसे चैलेंज था। अरमगान ने वही लम्हा पकड़ा। ज़ावियार की तरफ झुककर बोला, देखा, दावत नहीं दी मगर चैलेंज दे दिया है। ज़ावियार ने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा, ये वाइन नहीं, वार का पहला घूंट है। ज़ायरा खामोश रही, बस अपने हाथ में रखे फोन को हल्का सा नचाया जैसे कोई सिग्नल भेजा हो। फराज और रेहान की सब पर नजर थी। रेहान, ये दानियाल तो यही है, लेकिन बाकी ना खालिद शाहनवाज है, ना हशमत जब्बार और ना ही वो चारों माफियाज। फराज ने पूछा था, यहीं कहीं होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ ना आए हों। पैंथर इतना शातिर है कि वार ऐसा करता है जिसकी किसी को खबर नहीं होती। बहुत चालाक है वो, लेकिन अगर वो यहाँ है तो कहाँ है? फराज ने पूछा था। मुझे क्या पता, और हमने ना कभी उसे देखा है जो देखते ही पहचान लें। ये तो है, लेकिन चोरी करते पकड़ तो सकते ही हैं, फराज ने कहा था। पैंथर को तो किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता इंस्पेक्टर। पैंथर किसी की पकड़ में तो क्या, किसी की नजरों में भी नहीं आता। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, शेडो ने उन्हें दूर से कूदते हुए कहा था। वॉल्फ और फाल्कोन अपना काम कर रहे थे। फाल्कोन, यार जल्दी कर, वॉल्फ ने कहा था। तू कर ले, छोटा सुराग थोड़ी है, बड़ा करना है, फाल्कोन ने कहा था। मुझसे नहीं होता। फिर चुप करके खड़ा रहे। वो दोनों हॉल के ऊपर खड़े थे। फाल्कोन इतनी सफाई से काम कर रहा था कि किसी को आवाज तक नहीं जा रही थी। हॉल में लाइट म्यूजिक चल रहा था। सबकी नजरें इधर उधर थी। माय लेडी, कसम से बहुत हॉट लग रही हो, शेडो ने ज़ायरा के कान के पास झुकते हुए कहा था। हर जगह फ्लर्ट करना शुरू कर देते हो, जगह तो देख लिया करो। हाँ, देखी है मैंने जगह, ठीक ठाक है। बताऊं क्या पैंथर को कि उनका भाई मुझसे फ्लर्ट किए जा रहा है? हाँ, आज बता ही दो, धमकियां मत दो, शेडो ने जैसे उसे चैलेंज दिया था। ओके, माफिया लेडी आगे बढ़ी थी। देखना कहीं तुम पर गुस्सा ही ना हो जाए, फिर ना कहना, शेडो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा था। मुझे नहीं डरा सकते तुम, समझे? ओके माय लेडी। पैंथर एक टेबल के पास हाथ में वाइन का गिलास पकड़े खड़ा था। पैंथर सर, माफिया लेडी ने उसे बुलाया था। हाँ कहो, पैंथर ने नजरें सामने रखते पूछा था। वो शेडो मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। शेडो भी वहीं आ चुका था। हाँ पता है, मेरे भाई की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पैंथर ने सामने देखते संजीदगी से कहा था, जिस पर शेडो हंस दिया था। वो फ्लर्ट कर रहा है मुझसे, इसमें कौन सी स्किल है इसकी? माफिया लेडी ने कहा था। बेचारा बच्चा है, कर रहा है तो करने दो। वैसे ये स्किल इसमें पहले नहीं थी, अचानक ही आई है, पैंथर ने संजीदगी से कहा था। शेडो ने अंसी दबाई थी और माफिया लेडी ने घूर कर उसे देखा था और दूर जाकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ माय लेडी? शेडो ने अंसी दबाते हुए पूछा था। तुम मुझसे बात मत करो, समझे? ओके, सिर्फ देखूंगा। नजरें सामने रखो तो अच्छा है, वो तुमने जो रखी हैं। माफिया लेडी ने जोर से उसके पांव पर हील दे मारी थी। आउच! जालिम लड़की, मार डाला। मजा आया? अब बोलो जरा, बताती हूँ मैं फिर तुम्हें। बहुत ही बदतमीज हो तुम, शेडो ने दांत पीसते कहा था। पता है मुझे, तुम मत बताओ। हो गया भाई, फाल्कोन उठा था। पैंथर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई थी। वार करने के लिए तैयार थे वो। दानियाल ने इधर उधर देखा था। अभी भी बहुत लोग थे वहाँ। पुलिस वालों की हर शख्स पर नजर थी। अब तेरा काम है आगे का, मैं नीचे जा रहा हूँ, फाल्कोन ने वॉल्फ से कहा था। ओके बडी, देखना काम अच्छे से
करना, गिर विर गया बड़ी बेइज्जती हो जानी है। वॉल्फ ने कहा था, फाल्कोन कभी कच्चे काम नहीं करता। चल वक्त हो गया है। ओके तू जा, मैं आता हूँ, वॉल्फ ने कहा था। फाल्कोन नीचे चला गया था। पैंथर ने शैडो को आंखों ही आंखों में इशारा किया था और अचानक हॉल की लाइट्स बंद हुई थी। पुलिस अलर्ट हुई थी। शैडो और माफिया लेडी अपने काम में लगे थे और वॉल्फ की एंट्री हुई थी। वो रस्सी से लटकता हुआ छत के उस सुराख से नीचे उतरा जो उन्होंने कुछ देर पहले प्लानिंग के साथ तैयार किया था। सुराख इतनी महारत से किया गया था कि किसी ने हल्की सी दर्द भी महसूस ना की थी। नीचे हॉल में खूब अंधेरा था। पुलिस हॉल में थी मगर उन्हें अब तक इस एंट्री का अंदाजा न था। वॉल्फ एक हाथ में रस्सी थामे, दूसरा हाथ हवा में लहराए आहिस्तगी से नीचे उतर रहा था। चेहरा मास्क से ढका, आंखों में शोले और जिस्म की हरकत ऐसी कि जैसे वक्त थम गया हो। पैंथर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। वॉल्फ ने एक नजर पूरे हॉल में दौड़ाई थी और उसकी नजर एक लड़की पर गई थी जिसने एक मेहरून कलर का ड्रेस पहना था, बाल खोले हुए थे। वो दानियाल के साथ खड़ी थी। वो कोई और नहीं, उसकी बहन दुआ हशमत थी। ओ मूनलाइट, तुम हॉट लग रही हो। अर्श ने आंखें छोटी किए अंधेरे में भी उसे देख लिया था। वो रस्सी के जरिए आहिस्ता से नीचे उतरा था और दरमियान में पड़ा हीरा बहुत महारत से उठा लिया था। लगता है ये उन चारों की चाल है, दानियाल ने गुस्से से कहा था। लगता है कोई चोरी करने लगा है। अलर्ट रहो, लाइट्स ऑन करो, एसएचओ रेहान ने गुस्से से कहा था। और लाइट्स ऑन हो चुकी थी लेकिन सब कुछ गायब था। माफियाज, उनकी टीम, हीरा, सब। वॉल्फ ने जैसे ही हीरा उठाया था, फाल्कोन ने रस्सी खींच ली थी। हॉल में मौजूद बाकी हीरे माफिया लेडी और शैडो के पास थे। पकड़ो सबको, पुलिस अलर्ट हुई थी। वहां मौजूद लोगों को रोका था और इंस्पेक्टर फराज और एसएचओ रेहान बाहर को भागे थे। ओह नो, कमीने फिर से वार कर गए। दानियाल शदीद गुस्से में था। वो भी गुस्से में बाहर पड़ा था। वो सब हॉल की पिछली जानिब बाइक्स पर बैठे थे। वेल डन बॉयज, पैंथर ने कहा था। वॉल्फ ने पैंथर की तरफ डायमंड फेंका था जो उसने कैच किया था और बाइक्स वहां से निकली थी। रेहान और फराज ने बाइक्स की आवाज सुनी थी। पकड़ो इन्हें। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। वो सब स्पीड से बाइक्स चला रहे थे। माफिया लेडी शैडो के पीछे बाइक पर बैठी थी। दानियाल भी अपनी गाड़ी में बैठा था। अंधेरी रात में उनकी बाइक्स के पीछे पुलिस की गाड़ी थी और पुलिस की गाड़ी के पीछे दानियाल की गाड़ी। उन्होंने अपनी बाइक्स की स्पीड बढ़ाई थी। ये पुलिस वाला तो पीछे ही पड़ गया है, वॉल्फ ने कहा था, जो ब्लूटूथ पर उन चारों ने सुना था। तो रोक दूं क्या? माफिया लेडी ने कहा था। अरे माफिया लेडी, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है, वॉल्फ ने कहा था। और माफिया लेडी ने बिजली की तेजी से शैडो की बेल्ट से गन निकाले गोली चलाई थी जो उनकी गाड़ी के टायर में लगी थी। फिर उसने दूसरी गोली चलाई थी जो दूसरे टायर में लगी थी। टायर फट चुके थे और गाड़ी रुक चुकी थी। एसएचओ रेहान गुस्से से चीखा था। डैम इट, उनकी इतनी हिम्मत, वो गुस्से से बोला था। हिम्मत को चैलेंज मत करना, हम वो करते हैं जो कोई नहीं करता, फाल्कोन कहते ही हंसा था। यस ब्रो, वॉल्फ ने हंसते हुए कहा था। ये मेरे हाथ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, रेहान ने गुस्से से कहा था। ये बहुत शातिर हैं। एक और वार कर गए, इंस्पेक्टर फराज ने दांत पीसते हुए कहा था। दानियाल की गाड़ी भी तेजी से चल रही थी। भाई, अब तो हीरे चोरी हो गए, अब घर चलें? दुआ ने कहा था। हाँ, जाहिर है घर ही जाएंगे क्योंकि उनसे हम ले नहीं सकते। वो पैंथर झटके से सांसें छीन लेता है।
इंसान की उसका कोई भरोसा नहीं है। इतना खतरनाक है भाई वो, बहुत जानवर है वो, जानवर, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसके वार से तो जानवर भी नहीं बच पाते। तो अब बाबा को किस मुंह से जवाब दूंगा मैं? भाई इसी मुंह से, और किस मुंह से? एक ही तो मुंह है आपके पास, दुआ ने कहा था, जिस पर दानियाल ने उसे घूरा था। दुआ ने मुस्कुराहट दबाते, नजरें घुमाते बाहर को देखा था। अब तो निकल गए हाथ से, अब क्या करें? फराज ने कहा था। कोई बात नहीं, कॉल करो बाकी लोगों को कि वो उनका पीछा करें। ओके, फराज ने अपने लोगों को कॉल की थी। कुछ हैवी बाइक्स आ रहे हैं, उनका पीछा करो, उन्हें हाथ से निकलने मत देना। जी सर। बेचारे पुलिस वाले, ओह मैं तो शदीद मोहब्बत रखता हूँ उनसे, बस वो मोहब्बत यकतरफा है। मैं आगे आगे भागता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे। बस एक बात बहुत अच्छी है उनमें, हर बार हमें जीतने का मौका देते हैं। बड़ा एहसानमंद हूँ मैं। वॉल्फ हंसते हुए कहता है। ओह रियली माय लिटिल ब्रदर, फाल्कॉन ने हंसते हुए कहा था। यस, वॉल्फ हंसा था और उनके पीछे कुछ और पुलिस वाले अपनी बाइक्स पर आए थे। ओह माय बॉयज, हमारा पीछा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हमारी स्पीड बहुत तेज है। और उन्होंने अपनी बाइक्स की स्पीड बढ़ाई थी। अचानक हवा की तरह वो उनकी आंखों से ओझल हो चुके थे। हेलो सर। हाँ बोलो, पकड़े गए वो सब? इंस्पेक्टर फराज ने पूछा था। सर वो अचानक गायब हो गए। डैम इट, फराज ने दांत पीसते हाथ का मुक्का बनाया था और गुस्से से फोन काटा था। भाग गए वो, फराज ने रेहान को बताया था। आज तो शायद उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं थे, रेहान ने कहा था। हाँ मुझे भी यही लगता है, और यकीनन वो हॉल में मौजूद थे। उन सब ने अपनी बाइक्स रोकी थी। इन्हें घर के पिछले तरफ खड़ा करो, फाल्कॉन ने गार्ड से कहा था। जी सर। वो लेट घर पहुंचे थे, सुबह के 2 बज रहे थे। वो सब अंदर दाखिल हुए थे। बहुत थक गया यार, अर्श ने अंगड़ाई लेते हुए कहा था। हाँ चल सोते हैं, जुहान ने कहा था। ओ भाई कहाँ? अपने रूम में जा, बीवी है तेरी। वैसे तो मैं तेरा प्यार था, तू मेरे साथ सोता था, तूने मुझे धोखा दिया है, अब जा, अर्श ने कहा था। नौटंकी मत कर। क्या नौटंकी? चल जा, सुला लेना मेरा छोटा सा भाई। अच्छा आ जा। पैंथर ने आहिस्ता से अपने रूम का दरवाजा खोला था और अभी उसने अंदर कदम रखा था कि अचानक रूम की लाइट ऑन हुई थी और पैंथर पकड़ा गया था। नूर दोनों हाथ कमर पर बांधे सामने खड़ी थी। नूर जान, इतनी रात को तुम जाग क्यों रही हो? चलो सोएं, जावियार ने कहा था और नूर ने उसका रास्ता रोका था। कहाँ से आ रहे हैं? नूर ने आंखें छोटी किए से घूरा था। मैं वॉक पर गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी लिटिल एंजल, चलो अब सोएं। अच्छा वॉक पर गए थे ऐसे कपड़े पहनकर? नूर ने उसे घूरते हुए कहा था। क्या हो गया लिटिल एंजल, तुम शक कर रही हो अपने मासूम से शोहर पर? वैसे मासूम तो आप कहीं से भी नहीं हैं। अब सच सच बताएं, कहाँ गए थे? वो सब भी ऊपर आए थे। क्या हो गया है? अरमगान ने पूछा था। तुम सब जाओ यहाँ से, चलो निकलो, जावियार ने घूरते हुए कहा था। हाय अल्लाह, भाभी जाग गई और भाई अपने ही रूम के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अर्श ने मुंह पर हाथ रखते कहा था। चुप कर, सुनने दे, मजा आएगा, जुहान ने कहा था। जी नहीं, इन पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हमें बताएं कहाँ गए थे? नूर ने पूछा था। भाभी दिख नहीं रहा आपको? रेड ड्रेस में तो डेट पर जाते हैं ना, या फिर बारात लेने? अर्श ने शरारत से कहा था, जिस पर नूर ने जावियार को गुस्से से घूरा था और जावियार ने अर्श को। अगर आपने हमें ना बताया ना जावियार, हम ना बहुत गुस्सा करेंगे, सच सच बताएं अर्श भाई क्या कह रहे हैं? नूर जान, वो झूठ बोल रहा है, तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना? हमें आप पर यकीन है, लेकिन इन कपड़ों पर बिल्कुल नहीं है। रेड कलर के कपड़े पहनकर वाक पर कौन जाता है बताएं?
जावियार ने गहरा सांस लिया था। नूर, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जावियार ने उसके बाजू पकड़े कहा था। भाई कितने झूठे हैं, रेड कपड़े पहनकर वॉक पर गए थे, क्या झूठ बोला है? अर्श ने हंसी दबाते हुए आहिस्ता से जोहान से कहा था। हाँ ना, भाभी तो बड़े गुस्से में लग रही हैं। नूर जान अंदर चलो, मैं बताता हूँ। आप ना हमसे बात मत करें, हम नाराज हैं। किसी लड़की के पीछे गए थे ना, वो छोटे कपड़े पहनती हैं जो गंदे गंदे। वो अपना निचला होंठ पैर निकालती बोली थी। नूर जान मैं क्यों जाऊंगा, भला इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए कोई बेवकूफ ही होगा जो बाहर जाएगा। वो उसे सीने से लगाते हुए बोला था। हाँ आप है ना, हमें छोड़ कर गए। नूर कसम से नहीं गया यार, देखा तक नहीं मैंने तो किसी को। फिर कहाँ गए थे आप बताएं? नूर जान ये सब ना मुझे अपने साथ लेकर गए थे, इनकी कोई मीटिंग थी, फिर इन्होंने वापसी पर रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई, इसलिए देर हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ कितने बड़े झूठे हैं भाई, खुद भाभी से बचने के लिए सारा इल्जाम हम मासूमों पर लगा दिया। अर्श ने कहा था। लेकिन आप हमें बता सकते थे ना, और अभी आपने हमसे पहले झूठ बोला कि आप वॉक पर गए थे। हम नाराज हैं, अब आप कमरे में नहीं आएंगे, ये आपकी सजा है। नूर लिटिल एंजल की गलत है, ऐसी सजा भला कौन देता है? हम देते हैं, आपने हमसे झूठ बोला और हमें सोता छोड़ कर गए, ये आपकी सजा है। नूर अंदर बड़ी थी, जावियार भी पीछे बड़ा था। खबरदार जो अंदर आए भी तो आप, हम बहुत गुस्सा हैं आपसे। सॉरी लिटिल एंजल, जावियार ने प्यार से कहा था। ओहो भाई, और सॉरी, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, कहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए? अर्श ने कान साफ करते हुए कहा था। मैंने भी सुना है, सच है ये, जोहान ने कहा था। बड़े ही बदल गए हैं भाई, तो मतलब बाहर कुछ और होते हैं और घर में आते ही और। वाह वाह, अर्श ने कहा था। अच्छा चल आ सोएं, मुझे नींद आ रही है। अबे रुक जा, थोड़ा और देखने दे, जाते हैं फिर। कोई नहीं, हम नाराज हैं ना, बाहर जाएं चलें। नूर लिटिल एंजल ऐसे नाराज मत होना, आइसक्रीम खिलाऊंगा तुम्हें। वो तो आप हमें वैसे भी खिलाएंगे क्योंकि हम नाराज हैं। तुम्हें पता नहीं है लिटिल एंजल, शोर से नाराज नहीं होते, गुनाह मिलता है, तो झूठ बोलने से भी मिलता है, आपको नहीं पता? चलें आज, आप बाहर सोएंगे, फिर पता चलेगा, फिर आइंदा हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। लिटिल एंजल आइंदा से नहीं बोलूंगा, अभी तो सोने दो। बिल्कुल नहीं, आप जा रहे हैं या नहीं? नहीं, जावियार ने कहा था और नूर ने उसकी तरफ तकिए फेंके थे। नूर, जावियार हैरान हुआ था। नूर ने और तकिए फेंके थे, वो दरवाजे तक आ चुका था। वो दोनों जो पहले साकत खड़े थे अब हंस रहे थे। अर्श हंस हंस कर लोट पोट हो रहा था। नूर ना करो यार, चले बाहर। नूर ने उसकी तरफ मजीद तकिए फेंके थे और दरवाजा बंद कर दिया था। नूर तुमसे दरवाजा बंद नहीं होगा, मैं कर देता हूँ, तुम मुझे अंदर आने दो, हम नीचे वाला लॉक लगा सकते हैं। अच्छा नूर, जावियार ने दरवाजा बजाया था। अर्श नीचे बैठे हंस चला जा रहा था। पैंथर दुनिया को उंगलियों पर नचाने वाला अपने ही कमरे से बाहर खड़ा है, वो हंस चला जा रहा था। वाकई कहना पड़ेगा, पैंथर को उसकी बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया, क्या बात है। ब्रेकिंग न्यूज, सुनो सुनो, पैंथर को उनकी बीवी ने धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया, अर्श ने हंसते हुए कहा था, जिस पर पैंथर ने उसे गुस्से से घूरा था और यकदम वो चुप हुआ था। मेरा मतलब था भाई कि भाभी ने आपको आपके ही कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, अर्श ने हंसी दबाते हुए कहा था। तेरी तो, पैंथर ने रूम के बाहर पड़े टेबल पर पड़ा शो पीस उठाया था। अबे भाग, भाई बड़े गुस्से में है, अर्श ने जोहान से कहा था। अपना रूम नीचे शिफ्ट कर, तू समझा? बताता हूँ तुझे। भाई भाभी ने निकाला है ना आपको रूम से बाहर, हम पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? और तू जो बकवास कर रहा था, लड़की डेट क्या था वो? जावियार ने गुस्से से दांत पीसते पूछा था। मजाक, अर्श ने कहा था। निकल यहाँ से। वैसे भाई
بہت مزہ آیا مجھے آپ کو کمرے سے باہر نکالتا دیکھ، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نور نے نہ مجھے تیری وجہ سے باہر نکالا، سمجھا؟ تو جو بیچ میں کود پڑا تھا۔ مطلب جھوٹ آپ نے بولا اور الزام مجھ معصوم پر لگا رہے ہیں۔ معصوم نہیں، پورا چالاک ہے تو۔ آج کے بعد تیرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر بند۔ واٹ؟ یار بھائی، ابھی تو مجھے اپنا 1 کروڑ کا صدقہ بھی دینا تھا، عرش نے منہ بناتے کہا تھا، جس پر زاویار اور سوہان اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ 1 کروڑ کا صدقہ؟ زاویار نے کہا تھا۔ اتنا پیارا لگ رہا تھا، کسی نے نظر لگا دی تو اس لیے دینا تھا۔ لگاؤں گا تجھے، دفع ہو، زاویار نے غصے سے کہا تھا۔ میں تو چلا، آپ اب روم کا دروازہ نوک کریں، کیا پتا بھابی کھول ہی دیں۔ زاویار اس ڈھیٹ کو گھور کر رہ گیا تھا۔ نور یار کھول دو دروازہ، مناتا ہوں تمہیں۔ بالکل نہیں۔ وہ دوسرے روم میں چلا گیا تھا، کپڑے چینج کیے تھے اور وہیں لیٹ چکا تھا۔ نیند تو اسے نور کے بغیر آنی نہیں تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ نور دروازہ کھولے باہر آئی تھی اور کچن میں چلی گئی تھی۔ زاویار بھی باہر آیا تھا اور اس کے پیچھے گیا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔